Hello and welcome all. Myself Nitu Gupta, Masters in Law from Menela's Bangalore. So I'm here again to teach you Indian Contract Act 1872. So in my last session, if you remember, or you can say, or I can say, if you have been looking my sessions regularly, my lectures regularly, in my last session, I have told you that I'll bring problem-based questions. So here is so that you can understand what we have done till now, how to solve those problem-based questions. Is it clear? So in Krishna Study Academy, we believe that after each and every topic or after 2 to 3 topics, a teacher should discuss problem-based questions so a child can understand the topic well. He or she can clear her concepts, and how you will get to know how to solve these problem-based questions, especially in the mains exam. Is it clear? So first question, problem-based, is A gave a brand new car. A gave a brand new woolen suit costing rupees 4,000 to a dry cleaner for dry cleaning. Have you got it? बड़ा अच्छा सा नया सूट, वुलन सूट था, 4,000 रुपये का था, ड्राई क्लीनर को ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया गया था। और वो जो सूट था, सूट गलती से ड्राई क्लीनर से गुम हो गया। जब उस लेडी ने वो फुल वैल्यू सूट की क्लेम की, ड्राई क्लीनर ने क्या बोला कि एज़ पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रिंटेड ऑन द रिवर्स ऑफ द रिसिप्ट, कि जो उन्होंने जब वो ड्राई क्लीनिंग के लिए दे के गई थी, तब एक रिसिप्ट दी थी और रिसिप्ट के पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, और जो ए ने साइन भी की थी, वो लेडी ने साइन भी की थी। इज़ इट क्लियर? So signed by that lady. So dry cleaner said he is liable to pay only the 10 times the amount of dry cleaning charges. और ड्राई क्लीनिंग चार्जेस कितने थे? 70 रुपीज़, ओनली 70 रुपीज़ थे। और क्या कहा है कि उस टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखा गया था कि जितना ड्राई क्लीनिंग अमाउंट है उससे 10 गुना ज़्यादा वो पे करेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इज़ द ड्राई क्लीनर लाइबल टू पे रुपीज़ 4,000 और ओनली 700 एज कॉन्टेंटेड बाय हिम? Is dry cleaner liable to pay rupees 4,000 or only 700 as contented by him? So hope you have understood the facts and circumstances of the case. Now this problem based, अगर आपको एग्ज़ाम में आता है एक problem based, I told you earlier also, again I am repeating, please first do write facts of the case. Number 1 fact is कि lady gave a brand new woolen suit costing rupees 4,000 to a dry cleaner for dry cleaning. Second fact, suit lost by mistake by dry cleaner. Is it clear? Third fact, write all the facts 1, 2, 3. Now see which law is applicable. Contract law is applicable. Third, which provision of Contract Act is स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट में, अब एक साइड पे लिख लो कि स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स क्या थे। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स यही था कि एक जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर देती है, और जो वीकर पार्टी है वो उसको साइन करने पड़ते हैं, अदरवाइज़ ही और शी हैज़ नो ऑप्शन। अब वो लेडी अपना ड्राई क्लीनिंग के लिए सूट दे रही है, शी वॉज नॉट हैविंग एनी ऑप्शन, उसको साइन नहीं, ऑल उसने देखा नहीं देखा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। टर्म्स एंड कंडीशन लिखी थी एंड शी हैज साइंड ऑल्सो। तो वही सारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है वही सारी आपके फैक्ट्स में है। तो लेट अस सी कि वेदर इट इज़ we know that this case is relating to standard form contracts.
और एक बात आपको बता दूं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वहाँ पे अनरीजनेबल टर्म्स नहीं होनी चाहिए. अनरीजनेबल टर्म्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सच कॉन्ट्रैक्ट्स. Is it clear? So this is a case of relating to standard form contract. Is it clear? Now let us discuss another example. Another question. If a father promises his 2 children that he will purchase to them a Android phone to both of them in case they stand first in the coming exams, in the coming exams. Now both the children stood first in their respective classes. Now they are first, so they are demanding mobile phones. Father refused to purchase the mobiles as promised by him. Now question arises whether children can sue in the court of law for breach of contract against their father. Obviously no. If you have seen my very first lecture, in that lecture I have discussed that there must be a legal obligation. Here children cannot sue father in the court of law for breach of contract, as there is no agreement enforceable by law. There is no intention of creating legal relationship in the present case. So children cannot sue. Now next question. A writes to B and says, I hear that you are thinking of selling your TV. A ने B को लेटर लिखा and he said कि मैंने सुना है आप अपना TV सेल कर रहे हो. Then he wrote, if it is in a good order and if price is right, I would like to buy it. Please advise by return post. Now B wrote back saying TV is in a good working order and is cheap at rupees 8,000. To this A replied saying, I accept your offer and will buy the TV for 8,000 rupees. Shortly after receiving this letter from A, B received an offer of rupees 10,000 from his friend. Shortly after receiving this letter from B, A received an offer of rupees 10,000 from his friend. As a result, B now wishes to sell the TV to his friend. Is it clear? देखो A ने B को लेटर लिखा कि मैंने सुना है आप अपना TV सेल कर रहे हो. अगर वो फिर उसने कहा कि अगर गुड ऑर्डर में और प्राइस राइट है तो मैं ख़रीदना चाहता हूँ. तो उसने A ने ये भी लिखा कि रिटर्न पोस्ट से मुझे एडवाइस करो. B ने लिखा कि टीवी गुड वर्किंग ऑर्डर में है, चीप है, 8,000 रुपये का. इससे A ने रिप्लाई किया ठीक है मैं आपका ऑफ़र एक्सेप्ट करता हूँ और मैं आपका टीवी 8,000 में ख़रीद लूँगा. थोड़ी देर बाद, कुछ टाइम बाद, यू कैन से जब उसे लेटर A का लेटर मिला कि ओके आफ्टर दैट टाइम, ठीक है, शॉर्टली आफ्टर रिसीविंग दिस लेटर फ्रॉम A, B को एक और ऑफ़र मिल गया अपनी फ्रेंड से कि वो उसका टीवी 10,000 में ख़रीदना चाहता है. अब B चाहता है कि वो अपने फ्रेंड को टीवी बेचे. नाउ एडवाइस B. हैव यू गॉट माई? अब ये देखो, ये दिस क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन यू कैन से ऑफ़र एक्सेप्टेंस पे. तो अब इसमें क्या है,
कि ऑफ़र होता क्या है. ऑफ़र, एज आई हैव टोल्ड यू, इट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 2A. अगेन दिस इज़ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. फैक्ट्स लिख लो आप. फैक्ट्स इज में लॉ, कॉन्ट्रैक्ट. देन प्रोविज़न कौन सी है ऑफ़र पे. ऑफ़र क्या है, सेक्शन 2A में डिफाइन है. इट इज़ अ फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय द ऑफरर. ठीक है, जो कि ऑफ़र को बाउंड कर देता है जब वो एक्सेप्ट कर लेता है. ठीक है, तो अब उस केस में क्या है, नाउ दिस इज़ बेस्ड ऑन हार्वे वर्सेस फेसे. अब यहाँ पे क्या है कि सिर्फ उसने ये नहीं कहा कि ठीक है, मैं एक्सेप्ट नहीं किया उसका ऑफ़र. जो परचेज़र है यहाँ पे, उसका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया. उसने सिर्फ ये बोला है कि टीवी गुड और वर्किंग ऑर्डर में है और 8,000 रुपये के हैं. उसने ये नहीं कहा कि आई एम रेडी टू सेल माई टीवी टू यू. ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन का. इफ़ इट इज़ गुड ऑर्डर एंड द प्राइस इज़ राइट, आई वुड लाइक टू बाई इट. प्लीज़ एडवाइस बाय रिटर्न पोस्ट. ठीक है, उसने बता दिया गुड ऑर्डर में, प्राइस बता दिया, बट ये नहीं कहा कि ही वॉन्ट्स टू सेल हिज टीवी. ही वॉन्ट्स टू सेल हिज टीवी. सो यहाँ पे लोएस्ट प्राइस बताया है जहाँ के यू कैन से एट विच वेंडर वुड सेल contains no implied contract to sell at the price to the person making the inquiry. So B has not made any offer. It is only invitation to offer. Is it clear? यहाँ पे A B को ऑफ़र कर रहा है जो कि B एक्सेप्ट करेगा. B ने एक्सेप्ट नहीं किया. देर वॉज नो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन A एंड B. तो B है, B इज़ लिबर्टी टू सेल TV टू एट अ हायर प्राइस टू हिज फ्रेंड. इज़ इट क्लियर? अब इसी क्वेश्चन में जो मैंने अभी आपको फैक्ट्स बताए हैं, विल डिस्कस वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज फैक्ट्स. वुड यू आंसर बी डिफरेंट इफ़. अभी तो हमने कहा कि जो B है, B ही कैन सेल द TV टू हिज फ्रेंड. लेकिन अब यहाँ पे क्या है, आपका आंसर शायद वहाँ डिफरेंट होगा. अगर मैं ये बोलूँ कि B ने अपने लेटर में A को ये लिख दिया, TV इज़ इन अ गुड वर्किंग ऑर्डर एंड चीप एट ₹8,000. प्लीज़ एडवाइस बाय रिटर्न पोस्ट वेदर यू विश टू हैव द TV. जो सेलर है उसने अगर ये लिखा, प्राइस बता दिया, गुड वर्किंग ऑर्डर में है, और उसने कहा रिटर्न पोस्ट से मुझे बताना वेदर यू विश टू हैव द TV. तो इस केस में क्या है कि B है, B ने क्लियरली वो ऑफ़र वहाँ पे कर दिया. अगर A ने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, देन ही इज़ बाउंड बाय हिज ऑफ़र, देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन A एंड B. इन सच केसेस B कैन नॉट एक्सेप्ट हिज फ्रेंड्स ऑफ़र. Is it clear? Now question. A reputed company gave an advertisement in a leading newspaper. एक reputed company थी, उन्होंने advertisement दी leading newspaper में. On the eve of Diwali, we have pleasure of announcing a gift scheme. Anyone who purchases washing machine of the company. Anyone who purchases washing machine of the company from the specified showrooms in Delhi shall be given a microwave oven as a free gift. एडवर्टाइजमेंट निकाल दी कंपनी ने कि अगर दिवाली पे हमसे कोई, और उन्होंने शोरूम के नाम लिख दिए हैं कि इन शोरूम से अगर आप वॉशिंग मशीन परचेज़ करोगे दिल्ली में, देन यू विल गेट ना माइक्रोवेव ओवन एज अ फ्री गिफ्ट. स्कीम है ये ऑपरेटिव है ओनली 15 डेज़ के लिए. व्हेन ए परचेजेज अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम द स्पेसिफाइड शोरूम, when A purchases a washing machine from specified showroom and claimed his gift, he was denied it on the ground that the advertisement was mere puffing to attract customers only. Decide. Got it? So again write facts number wise. Then which law is applicable? Contract. Which provision is applicable?
अगेन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इज इट क्लियर? सो अब इस पर आप देखोगे, जब आपको ये पता लग गया क्या, फिर ऑफ़र की इसेंशियल्स लिख लेंगे आप। लिखिए आपके ऑफ़र के इसेंशियल्स क्या है। एक पर्सन दूसरे को सिग्निफाई कर रहे हैं, क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, अपनी विलिंगनेस कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग एंड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर। ठीक है, नाउ यू हैव रिटन द इसेंशियल्स ऑफ ऑफर। देखो इसमें है वो चीज़, ये कौन से ऑफ़र पे, काइंड्स ऑफ ऑफ़र लिखोगे, क्यों कौन से ऑफ़र पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। इट इज़ बेस्ड ऑन जनरल ऑफ़र बिकॉज इट वाज एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर। फिर आप देखोगे वेदर दिस द फैक्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन एनी केस लॉ। येस, दीज फैक्ट्स आर बेस्ड ऑन द famous case that is Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company। इसके फैक्ट्स और उस केस के फैक्ट्स बिल्कुल सिमिलर हैं। तो अब डिसाइड करो कि कंपनी इज़ लायबल टू पे और नॉट, कंपनी इज़ लायबल टू गिव माइक्रोवेव और नॉट टू द कस्टमर। So this question, the question in the present problem is whether there is a valid contract between 10 persons and the company। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए, फिर ऑफ़र होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कॉन्सिडरेशन होना चाहिए, इंटेंशन तो होनी चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। इज इट क्लियर? ये सभी होना चाहिए। तो अब ये है कि अब इसमें क्या है, प्रेजेंट केस में इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने चाहे एडवर्टाइजमेंट निकाली थी, लेकिन उनकी इंस्ट्रक्शंस पे जिस तरह से उन्होंने लिखा था वैसे ही कस्टमर ने वॉशिंग मशीन उसी शोरूम से बाई की है। तो द कंपनी हैज़ टू गिव द माइक्रोवेव। एज इन द केस ऑफ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, वहाँ पे भी कंपनी ने अपनी मेडिसिन निकाली थी एक कोल्ड इन्फ्लुएंजा की। उन्होंने कहा था जो भी पेशेंट इस तरह से यूज़ करेगा और उसकी रिकवरी नहीं हुई है देन दे विल पे 100 pounds टू दैट पेशेंट। लेडी कार्लिल ने यूज़ की थी मेडिसिन, कंपनी ने देने से मना कर दिया। देन शी वेंट टू दी कोर्ट ने भी कहा कि दे हैव टू पे। कंपनी ने कहा कि इट इज़ नॉट एनी ऑफ़र, क्योंकि ऑफ़र हमेशा एक्सेप्ट होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए, बट वो ऑफ़र तो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। देन कोर्ट सेड इट इज़ अ जनरल ऑफ़र। जनरल ऑफ़र में कोई एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए एज सच। अगर आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस वो फॉलो कर रहे हैं, इट मीन्स ही और शी हैज़ एक्सेप्टेड योर ऑफ़र। सेम इज़ द केस हियर। इज़ इट क्लियर? Thank you. We'll discuss some other problems in the other session.